अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद तैयब, मैं मोहम्मद ताहिर और हमारे साथ छोटू मोहम्मद इस्माइल मौजूद हैं। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, फ़िश तो आपने कई दफ़ा खाई होगी, बार बार खाई होगी और बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज हम जो एक नए अंदाज में फ़िश बनाने का तरीका देखेंगे, इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। वीडियो बड़ी एक्साइटिंग, बड़ी मज़ेदार और बड़ी यमी वीडियो है और आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे गाइस तो हमारा बहुत सा हौसला बढ़ेगा और हमारी बहुत सी मदद हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। ஒரட்டு மீன் செம்மையா சமைக்கிறான், பயங்கர மரிச்சிக்கிறான். இன்னைக்கு ஒரு புட்டே எல்லாரும் வாங்க. வெல்கம் டு அண்ணா பறக்கணும், செது தெரிக்கணும். நம்ம சொல்றத கேட்கணும்டா. எப்ப அந்த சாமானெல்லாம் சேர்த்து அடுத்து எடுத்து வா. எல்லாம் சரியா இருக்கு. அவ்வளவுதான். காது வாங்கி இதுக்கு பேலன்ஸ் இல்லையா? பாலை கடைசியா இருக்கும். வெட்டிக்கு உங்க விருப்பத்துக்கு கேட்டாச்சு. அது உன் கட்டல வச்சு நீலாம் பிள்ளை இல்ல. ரெடி ஆச்சா? இது யாரு தாத்தா வந்து வெட்டு வரா? கை பார்க்காத அளவுக்கு நீங்க கிளம்பி கொடுத்தீங்கன்னா நான் கரெக்டா வெட்டிடுவேன். அளவுக்கு லாம்பு எல்லாரும் தலை முடி கண்ணுக்குள்ள எல்லாம் போயிருக்கு. ஒரு இளநீ மட்டும் போறாங்க. உனக்கு மட்டும் ஒரு இளநீ கொண்டு வர அதுக்கப்புறம் தானே இது முடிஞ்சு போச்சு. இல்லதான் வச்சு நடக்கு முடிஞ்சு மச்சான். ஒரே இடத்துல விட்டாம சுத்தி சுத்தி விடு. மீன் சுத்து பாக்குறியா? நாக்க மாட்டியா? நான் அந்த மாதிரி என்னத்த மங்களகரமா மஞ்சள் ஆரம்பிக்கிறோம். இருந்துட்டு போறேன். நல்ல விடுங்கடா எனக்கு. ஏய் 3 வந்துருச்சு. எப்படி சனி ஞாயிறு வரும் அந்த டைம்ல நீ இங்க இருந்தாலும் அதை நான் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரேன். சின்னால தானே மாப்பிள்ள போகணும். பாடிட்டே இருக்காரு. அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து, அரைச்ச மிளகா சாந்து, உரிச்சு அரைச்ச பூண்டு, எலுமிச்சம்பழம் சாறு, முணுக்குன கல்லுப்பு, மீனுக்கு நல்ல வயிற்றுக்கலாம் மசாலா தடைங்க அடுத்து கண்ணு மீனுக்கு கண்ணு எரியுமே, மிளகாப்படி எடுத்தாட்டு வருமா? பார்த்தனா அது மச்சான். சொல்லு மச்சான். இந்த மீனுக்கு உள்ளாரக்குள்ளே ஒரு மீன் இருக்கு மச்சான். அது குஞ்சு மீன்டா. அது சாப்பிட்டதுடா. இந்த பெரிய மீன் சாப்பிட்டுறியா? நான் ஒரு வாட்டி கை கட்ட வச்சிட்டேனா? நீ ஒரு ஐயே போதும், அதெல்லாம் நல்லா மசாலா ஊறிடுச்சு. அப்படியே ஓகே வச்சுக்கோங்க. அப்படியே அப்படியே சரி சொல்லிட்டு கொண்டு போகலாம். அடுத்து மாதிரி நாங்கள் பிடிங்க. நேற்று 4 இருக்கா? நல்லா மடைக்குது அமைக்க விடுங்க. அப்படியே அது நீங்கள் எல்லாத்தையும் இப்படி மண்ணுக்கு பிடிச்சிக்கா. சந்திரன் ரெடி பண்ணுவா. நிப்பா 10 ஆரம்பிக்கலாமா?
தண்ணி ஊத்துடா தண்ணி ஒட்டுனோட நம்ம தண்ணி ஊத்துடா ஊத்து கையா போறோம் ஆமா காசு இது அள்ளி ஐயா அந்த மண்ணை பிரட்டி விட அப்படியே இந்த சைடு கரெக்ட்டா இறங்கு அது கீழகள் தோடி ஏலேலோ ஐலசா ஏலே இந்த மீதி நல்லா மீதி இந்த மீதி நல்லா மீதி ஏலேலோ ஐலசா இருக்குடி இந்த மீதிக்கு அப்படியே கால அங்கடிட்டு பிரிச்சிட்டு போறது இந்த ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோ இதையும் எடுத்து வச்சிரு எல்லாம் எடுத்து சர சர வேக தடவுனே அவங்களாம் நம்ம முந்திக்கிட்டு போகணும் ஐடியா முடியுதுங்க சும்மா நினைச்சியா அடி அடிச்சுட அடுப்பு இங்க நகட்டி வச்சா அங்க நகட்டி வைக்கல இதுதான் நீ பாக்குற வேலை போ அடிச்சு விடு டக்குன்னு பார்த்தா எடுத்து கொடுக்கலாம் எடுத்துட்டா ஒன்று எடுத்துட்டா இந்த இங்கே வந்தா இந்த மூலையில போடு அப்படியே ஆடிப்பா அப்படியே அம்மா போடுங்க அப்படியே அதெல்லாம் பிடிச்சி மேலே மீதி மேலே போட்டுருங்க அது ஒன்று அதுக்கு துண்டு பத்தண்டா யார் துண்டு பத்திரம் சும்மா மண்ணு கொட்டினா கொட்டட்டும் இதே தண்ணி போடு தாளத்தை வச்சு அப்படியே திருப்பி எடுத்து வச்சுட்டு வீட போடு மண்ணு இருக்கு வச்சு விடாத அப்படிதான் கேமரா இருக்கும் நீ தைரியமா புடி ஒண்ணும் பண்ணாது தட்டி அப்பா அப்படி தூக்குறேன் சூடுது அது வலி வேற டிபார்ட்மெண்ட் நீ பாயா தாள தோணுது சாட்சி விடுங்க ஆவி பறக்குது பாசே சூடு கொதிக்குது முடிச்சா கறி குழம்பு அருமையாக இருக்கா உள்ள கூட बात है गाइस, मच्छी तो आपने कई दफ़ा खाई होगी, बार बार खाई होगी, लेकिन इस अंदाज में पकी हुई और इस रेसिपीज़ को आपने पहली दफ़ा शायद देखा होगा। कि देखें ना गाइस कि कितने उन्होंने एक अजीब तरीके से इसको बनाया, और हम जो है ना ख़ुद बड़े हैरान हो गए थे कि जब वो लपेट रहे थे ना उसमें स्टील कली में, तो हमने सोचा शायद इसको जो है ना स्टीम करेंगे, लेकिन उनका जो एक तरीका था ना बनाने का वो तो भाई अलग ही था। उन्होंने इसको मिट्टी में गोया और मिट्टी में गोने के बाद उसको फिर आग में पकाया और स्टीम किया, तो बीच में से जब मच्छी पक के निकली तो गाइस यकीन जानिए हमारे खुद मुंह में पानी आ गया कि यार बड़ा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ ना यार। घी डाला उसमें बिल्कुल उसमें हाइजीनिक तरीके से, यानी कि मिसाले भी उन्होंने खुद ही बनाए थे या तैयार किए थे, तो उसमें भाई एक ये बात भी थी, बड़े नेचुरल सब जो जितने मसाले जाते थे वो सब नेचुरल थे।
वो खुद ही उन्होंने तैयार की, वहाँ पे रगड़ के उसको कूट के जो है ना लहसुन को मिर्चों को सबको रगड़ के ना खुद ही तैयार किया तमाम मिसालों को। तो यही होती है चीज़ कि आप जो है ना जो भी चीज़ खाना चाहें तो नेचुरल बना के खाएं। ये ना हो कि जो बाज़ार से जो मसाले जात मिलते हैं उसमें काफ़ी कुछ मिलावट होती है, जिसकी वजह से खाने से एक तो बंदे को मसला होता है, बीमार हो जाता है, एक पेट ख़राब और दूसरा तेज़ाबियत ये वो। तो लेकिन जो इस तरह के तरीक़ेकार होते हैं ना कि जो आप देसी तरीके से यानी कि अपने तरीके से एक रेसिपी तैयार करते हैं तो उसका जो है ना नुकसान नहीं होता, बिल्कुल एक रियल और नेचुरल चीज़ बन जाती है। तो आज इन्होंने भी एक जो है ना बड़ी ही ज़बरदस्त जो है ना एक रेसिपी तैयार की, इसका हमें शायद पता नहीं था, लेकिन हम भी जो इस तरीके से ना कभी बना के खाने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि इसका जायका क्या है और इसका टेस्ट क्या है। तो आप भी ज़रूर चेक करिएगा। अगर आप कहीं पे जाएँ पिकनिक पे तो वहाँ पे ये ऐसा जो माहौल बनाने में जो ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी, कि आप कुछ ऐसा पिकनिक पे जाएँ, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल बनाएं, मच्छी लेके जाएं। और मच्छी जो है ना कौन सी रेड सल्फर, ये भी मच्छी भी कई किस्म की होती है, लेकिन कुछ जो मच्छियाँ होती है ना फिश होती है उनका जो अपना एक अलग टेस्ट होता है, अपना एक जो है ना उनका एक टेस्ट और मज़ा होता है खाने का। लेकिन जो रेड सल्फर है उसका भी अपना जो एक ना अपना टेस्ट है, बड़ी मज़ेदार मच्छी होती है ये भी। और एंड पे जब उन्होंने खाना बनाया, मच्छी तैयार की और जो राइस चावल बना के पका के ऊपर सालन डाल के जब खा रहे थे तो ताहिर ने पूछा कि ये एंड पे उसने मच्छी से क्या निकाल के खाया है। तो इस्माइल बड़े गौर से देख रहे थे, इसने कहा कि उसने उसकी आँख निकाल के खाई है। यार आँख तो नहीं खानी चाहिए थी, बाकी मच्छी तो सारी खा ली, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। लेकिन इस्माइल बड़ी गौर से उस वीडियो को देख रहे थे और उसने बड़ी गौर से तकीद से कहा कि भाई उसने उसकी आँख भी निकाल के खा ली। हमें नहीं पता चला उसने क्या निकाला है, लेकिन इसको पता चल गया कि भाई पता चला कि बड़े गौर से ये वीडियो देख रहा था। बाकी भाई वाकई बड़े जो है ना मज़ेदार वीडियो थी, बड़ी अच्छी रेसिपी उन्होंने बनाई है, देखा, मज़ा किया, चिल किया। और कोशिश करेंगे हम भी इस तरह की रेसिपी बनाएं और इसका भी टेस्ट करें, क्योंकि इसमें बिल्कुल सारा कुछ रियल और नेचुरल था। कोई भी इसमें कोई जो है ना तीखा मसाला और इस तरह के कुछ भी नहीं था। उन्होंने खुद ही तैयार किया, खुद तैयार करके उसको बना के फिर उसको पकाया। और बहुत अच्छी वीडियो लगी हमें भी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो।